دشمنی رسالت میں جب ڈٹے گئے، دشمنی رسالت میں جب ڈٹے گئے، ایک بچہ علی نام کا بول اٹھا، میں ادھر ہوں جدھر میرے سرکار ہیں، ایک بچہ علی نام کا بول اٹھا، میں ادھر ہوں جدھر میرے سرکار ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اشعار بہت ہیں، میں اس کلام کو اختتام کر کے منقبت کے کچھ شعر پڑھ رہا ہوں۔ جی منقبت امام حسین کا ایک مطلب کچھ شعر، اور یہاں سے آپ کی ذہانت کا پتہ چلے گا، آپ کی افہام و تفہیم کا مادہ محسوس ہوگا۔ بالکل بالکل نئے لب و لہجے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عادل بھائی ابھی تک شاید کہیں پڑھے نہیں ہیں، جی وہ سناتا ہوں میں، تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے امام حسین کی محبت میں کہہ دیجیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا حسین۔ دعائیں چاہوں گا، مطلب پیش کرتا ہوں، خوبصورت مطلب۔ حسینی کمیٹی کے جو نوجوان ہیں، یہی کمیٹی کے نوجوان ہیں سب ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولیے آپ لوگ سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک نواسا اپنے نانا، میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، سنیے آپ، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دھیرے دھیرے گرم ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ جی بڑے۔ ایک نواسا اپنے نانا، ایک نواسا اپنے نانا، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے، ایک نواسا اپنے نانا، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے، یعنی کربل کو روانہ، یعنی کربل کو روانہ قافلہ ہونے کو ہے، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ایک نواسا اپنے نانا، نانا ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے۔ اور ایک اور شعر پیش کرتا ہوں، سنیے، تھوڑی سی بات بڑھائیے۔ حشر تک، حشر تک، حشر تک جس کا رہے گا دیپ احسان عظیم، حشر تک جس کا رہے گا، حشر تک جس کا رہے گا دیپ احسان عظیم، حشر تک جس کا رہے گا دیپ احسان عظیم، کربلا میں آج وہ، کربلا میں آج وہ سجدہ ادا ہونے کو ہے، کربلا میں آج وہ سجدہ ادا۔ نعرہ تکبیر، اونچا بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک نواسا اپنے نانا، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا، ایک نواسا اپنے نانا سے جدا۔ کل جب میں جاؤں تو آپ کو یاد رہے حسینی کمیٹی میں ہاشم حسینی نے کون سا کلام سنایا تھا، تو اس کا ایک مصرع یاد کر لیجیے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ ایک نواسا اپنے نانا
کرتے ہیں, زور سے پڑھیے گا. ایک نواسا اپنے نانا, یہ ہاشم حسینی کے حسینی دوست ہیں. اب یہاں دیکھتے ہیں ہاشم حسینی کے ابا کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسا پڑھتے ہیں, زور سے. ایک نواسا اپنے نانا کو ہے, ایک نواسا اپنے نانا نانا, ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے, یعنی کربل کو روانہ قافلہ ہونے کو ہے. اب بالخصوص یہ شعر حسینی کمیٹی والوں کے حوالے سے, نام کے حوالے سے سنیے گا, اور ایک نعرہ آپ لوگ لگائیے گا, حسینی کمیٹی ہے تو واقعی سنیے گا شعر. عادل بھائی شعر سنیے آپ. ایک نواسا حیدری 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 شمشیر ہے, نبی کے ہاتھ میں حیدری شمشیر ہے, نبی کے ہاتھ میں حیدری شمشیر ہے, نبی کے ہاتھ میں حیدری شمشیر ہے, نبی کے ہاتھ میں. اب یزیدی فوج تیرا, اب یزیدی فوج تیرا, اب یزیدی فوج تیرا کیا سے کیا ہو نانا, ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے, یعنی کربل کو روانہ قافلہ ہونے کو ہے. عادل بھائی, آج مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں, میں نے خود بند کر دیا ہے. کہیں بھی داڑھی ٹوپی والا دیکھ لیا جاتا ہے یا مسلمان دیکھ لیا جاتا ہے, اس کو موب لنچنگ کر دی جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے نا. اور زبردستی ہم لوگوں کو پکڑ کے نعرے لگوائے جاتے ہیں ہمارے مسلمان لوگوں کو. ایک شعر پیش کرتا ہوں اور مجمع میں ہنگامہ ہو جانا چاہیے. پیش کرتا ہوں, سنیے گا آپ, اس لیے مائک بند کر کے بول رہا ہوں, سنیے. اور امام حسین کی محبت میں بولی یا حسین. ایک نواسا اپنے نانا سے جدا ہونے کو ہے. اگر شعر سنتے ہیں اولا میں تو شعر کو سن کے بتائیے گا. اٹھ رہی ہیں بدلیاں چاروں طرف سے ظلم کی, اٹھ رہی ہیں بدلیاں, اٹھ رہی ہے بدلیاں چاروں طرف سے
मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और कुरान न मिटा है, नबी न कभी कुरान शरीफ के मानने वाले बेटे हैं। सुनिए झूम के बोली या हुसैन, उठ रही है बदलियां चारों तरफ से जुल्म की, उठ रही है बदलियां, उठ रही है बदलियां चारों तरफ से जुल्म की, उठ रही है बदलियां चारों तरफ से जुल्म की, हिर्द में लगता है आका, हिर्द में लगता है बर्पा करबला हो है। मिलके पड़ी हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, एक नवासा अपने नाना से जुदा हो गए। ऐसे हाथ उठ जाए जैसे अलम उठाते हैं, जरा उठाइए हाथों को जोर से। एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है, एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है। चल दिए हजरत अब्बास इतने ताकतवर थे कि अपने दुश्मन का नाम अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पर लिख दिया करते थे। अब शेर सुन के बताइएगा, हुसैनी जज्बा लहू बेदार हो जाना चाहिए। हाँ, चल दिए चल दिए चल दिए हैं हजरत अब्बास दरिया की तरफ, चल दिए हैं हजरत, चल दिए हैं हजरत अब्बास दरिया की तरफ। कौन है मौला वाला, कौन है हाकिम यहाँ का फैसला होने को है, कौन है हाकिम यहाँ का फैसला होने को है। फिर बढ़िए एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है, एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है। मेहनत है हुसैनी ये ज़मीनों आसमां, मेहनत है हुसैनी ये ज़मीनों आसमां, मेहनत है हुसैनी ये ज़मीनों आसमां, जो किया बचपन में था, जो किया बचपन में था, वादा वफा होने को है, एक नवासा अपने नाना, एक नवासा अपने नाना से जुदा होने। अच्छी अच्छी आवाज़ें माशाल्लाह। यहाँ शोरा जो पढ़ रहे थे, यकीन जानिए मैं बहुत दुआ कर रहा था कि कितना अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं जो यहाँ के शोरा थे। और माशाल्लाह इस सामने से महसूस हो रहा है कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ में यहाँ के दम रखा। फिर से पढ़िए, एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है, एक नवासा अपने नाना से जुदा होने को है, यानी करबल को रवाना काफिला होने को है। दुरुस्त पढ़िए। مولانا محمد المبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم.
کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میری حاضری مکمل ہوگی، چونکہ طبیعت بھی نہ زیادہ دیر پڑھیں گے تو کا جلسہ نہیں ہو پائے گا۔ چند شعر پیش کرتا ہوں، اور حضرت مولا کائنات کے تعلق سے عادل بھائی اور ہم لوگ فیض آباد کی اکبر پور کی سرزمین پر تھے، غالباً ان کی موجودگی میں وہاں پڑھا تھا، ان کو پسند ہے کلام، اس کے چند شعر پڑھتا ہوں حسینی کمیٹی کے حوالے، حسینی نوجوان کے حوالے، جو امام حسین کی محبت میں تڑپتے ہیں، حضرت مولا کائنات کا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی اور آواز بڑھائیے گا۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے، اس میں بھی اچھے اشعار ہیں، چاند بھائی بہت خوبصورت کلام، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھا جائے تو ان کا ذکر کر لیا جائے جن کے نام سے خیبر کانپ اٹھتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کس کا نام آنے والا ہے؟ زور سے بتائیے کس کا؟ اور زور سے بولیے علی۔ ہر ہمت جرأت کی چٹان میں علی ہے، ہر ہمت جرأت کی چٹان میں علی ہے، ہر ایک شجاعت کے میدان میں علی ہے، ہر ایک شجاعت کے میدان میں علی ہے، بچپن سے ہی مومن ہے ایمان میں علی ہے، بچپن سے ہی مومن ہے ایمان میں علی ہے، جس شان میں بھی دیکھو اس شان میں علی ہے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری علی مولا، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دلی یا علی مولا علی۔ اور یہ شعر سنیے، ہر جیت تمہاری ہے تم جیت کے جاؤ گے، ہر جیت تمہاری ہے تم جیت کے جاؤ گے، جس طرح سے چاہو گے دشمن کو بھگاؤ گے، ہر جیت تمہاری ہے تم جیت کے جاؤ گے، جس طرح سے چاہو گے دشمن کو بھگاؤ گے، تم میں جو نہیں ہوگے ظاہر وہ دکھاؤ گے، تم میں جو نہیں ہوگے ظاہر وہ دکھاؤ گے، یہ کہتے ہوئے جب بھی میدان میں آؤ گے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی۔ اپنے گھوڑے کو سنیے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی؟ سچ بتائیے سب کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے پکاری یا علی، اور زور سے پکاری یا علی۔ عباس نے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی ہے، عباس نے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی ہے، گھوڑے نے بھی کربل میں پھر گرد اڑائی ہے، گھوڑے نے بھی کربل میں پھر گرد اڑائی ہے، ہر ایک یزیدی پہ وہ دھاک جمائی ہے، ہر ایک یزیدی پہ وہ دھاک جمائی ہے، جب شیر علی بن گئے تلوار اٹھائے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی۔ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، اور بہت خوبصورت شعر ہے، یقیناً نوجوانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب مجھ کو لگتا ہے محرم میں نعرہ لگے گا تو ایک نعرہ حیدری لگے گا۔ ایک اور شعر پیش کرتا ہوں، سنیے، بول دیجیے جھوم کے سبحان اللہ، اور زور سے بول سکتے ہیں، کمیٹی والے تیار رہیے نا، آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور یہاں سے کوئی دیوانہ نعرہ لگائے گا، شعر اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں، سنیے، جھوم کے بول دیجیے یا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، دشمن نہ ہرا پایا
دشمن نہ ہرا پایا کوئی بھی کبھی جن کو، دشمن نہ ہرا پایا کوئی بھی کبھی جن کو، ہر جنگ میں ہر جنگ میں ہر جنگ میں کافر پر ہے جیت ملی جن کو، ہر جنگ میں کافر پر ہے جیت ملی جن کو، تلوار خود اپنی ہی دیتے ہیں نبی جن کو، تلوار خود اپنی ہی دیتے ہیں نبی جن کو، وہ شیر خدا کے ہیں کہتے ہیں علی جن کو، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، فوجوں سے کوئی پوچھے لشکر سے کوئی پوچھے، فوجوں سے کوئی پوچھے لشکر سے کوئی پوچھے، نیزوں سے کوئی پوچھے خنجر سے کوئی پوچھے، نیزوں سے کوئی پوچھے خنجر سے کوئی پوچھے، ہیبت سے کوئی پوچھے یہ ڈر سے کوئی پوچھے، ہے نام علی کیسا خیبر سے کوئی پوچھے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، عاشق نعرہ ہے دری یا علی مولا پیش کرتا ہوں، سنیے گا، زور سے بولیے یا حسین یا حسین یا علی۔ یہ بتائیے اچھا لگا آپ لوگوں کو؟ بہت اچھا اچھا لگا؟ ہم حضرت مولا کائنات کے دیوانے ہیں۔ ایک بات پیش کر دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات بہت پوائنٹ کی۔ کچھ لوگ جو ہمارے سنی ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کے آئے تھے، سب سے پہلے مومن ہونے والی ذات حضرت علی کی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کہیں گے بات ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو مومن ہونے والی ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی۔ کس میں؟ بچوں میں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے کے آئے؟ زور سے بتائیے کون لائے؟ اگر کوئی کہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے تو کہنا بے شک لائے، لیکن بچوں میں۔ اور بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ٹھیک ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ اور بڑے بوڑھوں میں کون لے کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ۔ ایک شعر مکتب پیش کرتا ہوں، کلام آخری ہو رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجیے یا علی، اور زور سے بولیے علی، ایک نعرہ ہے دری مولا علی، ہاشم میں حسینی ہوں غزنی ہوں وصلی ہوں، ہاشم میں حسینی ہوں غزنی ہوں وصلی ہوں، ہر دین کے دشمن پر ہر حال میں بھاری ہوں، ہر دین کے دشمن پر ہر حال میں بھاری ہوں، اڑ جائے سلا کلی جس میں میں وہ آندھی ہوں، اڑ جائے سلا کلی جس میں میں وہ آندھی ہوں، ہے ساتھ علی میرے تنہائی میں کافی ہوں، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، پڑھیے، ایک نعرہ ہے دری یا علی مولا علی، ایک نعرہ ہے دری یا علی۔ تو اندھیرے میں بھی ذکر کر لیجیے ہاتھوں کو اٹھا کے، ایک نعرہ ہے۔ سب کو اچھا اتنے لوگ جا رہے ہیں، خیر ان کی مرضی ہے، مجھے یقین ہے کہ لوٹ کر واپس ضرور آئیں گے، کیونکہ دیکھو نعت سننا بہت اچھی بات ہے، شاعری سننا بہت اچھی بات ہے، میں خود لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں شاعری، لیکن ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ نعت سننے سے صرف ہمارا اور آپ کی روح خوش ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو تقریر سننے سے
हमारे और आपकी इस्लाह होती है। आप किस लिए बैठे हैं आप आकर कि हुसैन पाक का जिक्र सुनेंगे, सुनेंगे ना, इसलिए आकर बैठे हैं। तो अभी जो जिक्र सुनाया गया है वो नात के शायरी के जरिए आप तक पहुंचा है, आप तक गालिबन किसी की तकरीर नहीं हुई अभी तक। तो हमारे जो खुसूसी मेहमान हमने बुलाए हैं, अच्छी तकरीर इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। और खुसूसी उनसे कहा गया है कि जिक्र करबला तो करते ही हैं, खैर जिक्र करबला भी करें और जो करबला के बाद क्या हुआ था वो भी कुछ बयान करें, खुसूसियत के साथ उनसे कहा गया है। इंशाल्लाह वो भी आप लोग समाप्त करेंगे, अच्छी तकरीर सुनेंगे। चंद लम्हों के बाद आप देखेंगे बस हज़रत मेरे पाक पर तशरीफ लाने वाले हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिम अल कादरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। तो हज़रात हमारे औला की एक बहुत अच्छी शख्सियत, एक बहुत अच्छे सनागर, एक बहुत अच्छा शायर, एक बहुत अच्छा लहजा जो इस वक्त औला ही नहीं बल्कि मुल्क भर में जाकर नबी की नाम गुनगुनाता है। मैं उस लहजे को आवाज़ देता हूँ, बड़ा अच्छा लहजा है। उनके फौरन की बात हज़रत तक खिताब हम और आपको समाप्त करेंगे, उसके बाद आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। आइए आप इस्तक़बाल करते हैं शायर इस्लाम भाई चांद सतीश साहब का इस्तक़बाल करते हैं। नाम लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे बैठे हुए इकराम मशहूर अज़ाम बिलखुसूस बड़े भाई तौफीक आदमी साहब भाई बदनाज में इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना आदिल आदमी साहब वहीं पर शाहिद मुल्कुल हिंदुस्तान हाशिम रज़ा हुसैन साहब और तमाम शोरे किराम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। देखिए मैं भी सिर्फ ये सोच के आया था कि बस मेहमान हैं, मेहमानों को सुनना है। आप लोग बैठे, कुर्सी कोई बात नहीं, हो गया बैठ जाइए, एक से जगह में कुर्सी डालिए। एक काम करो, इधर आओ, आगे आओ, आगे। कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़े इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती आसिम अल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए जिस शख्सियत के हमें इंतज़ार था हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम अल कादरी साहब क़िबला, उनकी आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। मेरे तुरंत बाद आपको खिताब समाप्त करवाना है। आइए ज़रा ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दुरूद शरीफ ताक़ी पेश करें। पढ़िए अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आराम करो, बस ठीक है। आप लोग खैरियत से हैं? आइए अरे जो बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा कमेटी वाले तो मौजूद हैं माशाल्लाह। आइए जो आप हार डालना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल करें। आओ अरमान, आ जाओ एक एक करके।
शरीफ भाई आ जाओ, शरीफ भाई। बोल दूँ देखिए माशाल्लाह सारे काम हो गए हैं। हजरत की आमद भी हो गई, इस्तकबाल भी हो गया। अब बस आप लोग बिल्कुल बेदार हो जाइए, बस ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए एक बार और दूसरी पढ़िए। आदिल भाई देखें जी कि कुफ्र तेरी मौत के लिए आप लोग सवाल कीजिए, बहुत अच्छा है, अच्छा है। कुफ्र तेरी मौत के लिए, कि कुफ्र तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। कि कुफ्र तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। तीरगी तेरे जवाब में, तीरगी तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन। क्या बात है भाई, वाह तीरगी तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। स्टेज पर खड़े होकर झूठ नहीं बोला जाता है। खुदा इस वक्त गले में दर्द है और नज़ला जुकाम है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस ये है कि मैं पहले खड़ा हुआ हूँ, बस मुझे हुक्म हुआ है, मैं भी समा बतौर पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। बुलाया था फरमाया एक बार दोनों हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह कि तीरगी तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। और बहुत अच्छा आपने देखा होगा बहुत से लोगों को सीने पे हाथ मारते हैं, सीने पे हाथ मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ऐसा नहीं करते। और क्यों नहीं करते ये मुलायदा फरमाए कि अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर इसलिए मैं मानता नहीं। अरे अपना हाथ अपने सीने पर इसलिए मैं मानता नहीं कि अपना हाथ अपने सीने पे इसलिए मैं मानता नहीं। अरे क्योंकि मेरे दिल में जल गए, क्योंकि मेरे दिल में जल गए। अरे आज भी हसन हुसैन
गए, आज भी हसन हुसैन हैं, और जुल्म सर पटक के मर गया, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, मुस्तफा तुम्हारे दीन की, मुस्तफा तुम्हारे दीन की, अरे जिंदगी हसन हुसैन है, मुस्तफा तुम्हारे दीन की, जिंदगी हसन हुसैन है, जिंदगी हसन हुसैन है, जिंदगी हसन हुसैन है। अब देखिए हज़रात, वक्त बहुत हो गया है, 3 शेर मैंने पढ़ दिए हैं, बस एक 4 मिसरों की फरमाइश है, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो पढ़ दिए, पढ़ते हैं आदिल हज़रत इजाज़त है। दो पाक लिल्लाह हुब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहमी बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा मुबारक महीना है मुहर्रमुल हराम का, वहाँ सभी लोग बखूबी जानते हैं कि क्या है इस महीने में, और हजरत अभी बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह, आप लोग समाज फरमाएंगे, मिस्र मुलाहिदा फरमाएंगे। वहाँ की मौत भली है, वहाँ की मौत भली है, यहाँ के जीने से, वहाँ की मौत भली है, यहाँ के जीने से, जहाँ निकलता है ज़मज़म ज़मीं के सीने से, जहाँ निकलता है ज़मज़म ज़मीं के सीने से। और शेर बिल्कुल मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कि मैं उस हुसैन को, मैं उस हुसैन को कुरान नहीं तो क्या समझूं, मैं उस हुसैन को कुरान नहीं तो क्या समझूं, रसूल पाक के लगाते थे जिसको सीने से, बहुत लगाते जिसको सीने से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शुहदाए करबला का सना खान मुस्तफा चांद सिद्दीक अब्दुल्ला। बहुत अच्छा, 4 मिसरे और इसी बहर में क्या होगा, अच्छा, और उसके बाद इंशाल्लाह हज़रत का किताब होगा। और ये शेर देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छे शेर हैं इंशाल्लाह, देखें आदिल भाई कि यहाँ तो पहले से बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ तो पहले से बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचमे उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचमे
चाहते हैं और हाशिम भाई को तो तवज्जो बता ली हाशिम भाई शेर देंगे कि वो करबला है, वो करबला है, वहाँ है कदम पे काबा है। अरे वो करबला है, वहाँ है कदम पे काबा है, वहाँ खिलाफ नहीं सर कि वो करबला है, वो करबला है, वहाँ है कदम पे काबा है, वहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। सलाम सलाम माशाल्लाह भाई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक दौर चाय का चला था, गालिबन ये दौर शरबत का चल रहा है। आप लोगों को पूरा सराबोर रखा जा रहा है, पूरा ख्याल रखा जा रहा है आपका। आपको कहीं जाना नहीं है। तकरीर सुनेंगे ना आप लोग? हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग करबला का बयान सुनेंगे? सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। खैर आप लोग शरबत भी कीजिए और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं। अच्छी तकरीर आपको समाप्त करनी है। हजरत का ही हुक्म है, हजरत के साथ एक मेहमान तशरीफ लाए हैं, बस उनका एक कलाम होना है। उनके फौरन ही बाद हजरत का मुकम्मल खिताब होना हमें और आपको समाप्त करना है। आइए बिला ताखीर मैं कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, उनका इस्तेमाल करते हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसिया, ख्वाजा के हिंदुस्तान, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीन औला। माइक पर मुफ्ती मजहर साहब किबला। ये मेरे नूर का जलवा फरोश मोअज़्ज़ज़ुल इकराम शोरा जान हाज़िर नवाज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। एक बार झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना ये पेश करें, पढ़ें आवाज़ से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबद दुहूर व करमा। आप हज़रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बहुत ही देर से अशार समाअत फरमा रहे हैं। आए मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक बार मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है। क्या
حضرات اب بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگ بہت تیزی کے ساتھ کام کریں، شربت مکمل کریں. اب جو خطاب فرمانے کے لیے تقریر کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں اب آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. مائک پر تشریف لا گئے ہیں. ایک شعر سن لیں کہ اس لیے تر یہ نین رہتے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے؟ وہ تو اب لگ رہا ہے کہ نیند آ رہی ہے. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے لوگوں کو نیند آ رہی ہے. ہو جاتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خیر کبھی کبھی ہو جاتا ہے. خیال رکھیے. ابھی تو کہتے ہیں کہ جلسوں میں جو کہا جائے اسے غور سے سننا چاہیے. میں نے کہا کچھ، آپ نے کیا کچھ، اس لیے کہتے ہیں جلسوں میں آؤ تو بڑے غور سے سنا کرو بات کو، کیا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. اس لیے تر یہ نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں. اے بذریعہ والو، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، جس کے دل میں حسین رہتے ہیں. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلا تاخیر آپ کے سامنے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی دورہ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم القادری صاحب اللہ، جن کا تعلق سرزمین رچھا سے ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. استقبال کیجئے، ویلکم کیجئے، سواگت کیجئے. اچھے انداز میں نعرے کے ساتھ جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری. کرو السلام علیکم. اچھا ہے لگو بات صحیح ہے. کتنے قریب پہ ہو یار؟ منبر رسول پر ذمہ دار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین محفل اسلامی رشتے کی ماؤ بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن. آمین. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. آمین. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. لائق مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات.
بالخصوص اراکین جلسہ جنہوں نے بڑی ہی قد و کاوش اور محنت شاقہ کے بعد اس محفل رسول اعظم کا انعقاد کیا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس جلسہ پاک کو قبول فرما کر ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اور اس جلسہ پاک میں جن لوگوں نے دام درم قدم قلم سخن شرکت کی، میرے مولا سبوں کی شرکتوں کو قبول فرمائے، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سبوں کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور جائز کاروبار میں بھی برکتیں نازل فرمائے، آمین آمین۔ آپ سر شام سے لے کر اب تک شورائے ملت اسلامیہ سے نعتیہ دیوان اور مناقب امام حسین سماعت فرما رہے تھے، اور بیچ بیچ میں آپ نے آبرو نقابت فخر نظامت حضرت مولانا محمد عادل رضا صاحب قبلہ کو بھی سنا۔ اللہ پاک ہمارے ان علماء شعراء اور حفاظ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، اور ان کو آسمانی زمینی بلاؤں سے بھی محفوظ و معمور فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، دل افسردہ کو سرکار اب خوشی دے دو، سکون نصیب ہو جس میں وہ زندگی دے دو، دل افسردہ کو سرکار اب خوشی دے دو، سکون نصیب ہو جس میں وہ زندگی دے دو، میرے نبی میرے بے نور سے چراغوں کو، میرے نبی میرے بے نور سے چراغوں کو، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دو، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دو، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دو۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذویہ وآلہ عبدت دہوری وکرما۔ آپ پوری تاریخ اسلام کا جائزہ لیں اور پوری تاریخ اسلام کو پڑھیں تو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جب سے نسل انسانی نے اس دھرتی پر قدم رکھا تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر تا قیام قیامت، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان مارکے اور جنگیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب
रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार फरमाने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, ए फरिश्तों आदम को सिजदा करो। तमाम फरिश्ते सिजदा रेज हो जाते हैं इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, मगर शैतान ने सिजदा करने से इनकार कर दिया। रब्बे कदीर ने शैतान से फरमाया, ए अज़ाज़ील, जिस तरह मेरा हुक्म तमाम फरिश्तों को था इसी तरह मेरे हुक्म में तू भी शामिल था। तमाम फरिश्तों ने आदम को सिजदा किया लेकिन तूने सिजदा करने से इनकार क्यों कर दिया? तो रब्बे कदीर की बारगाह में शैतान अर्ज करता है, ए परवरदिगार, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है। मिट्टी की खासियत यह है ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, लेकिन आग की ये खासियत है नीचे जलाओगी तो ऊपर पहुंचती है, उसके शरारे आसमान की जानिब भागते हैं। ए परवरदिगार, आग मिट्टी के सामने झुके ये उसकी तौहीन है। ए परवरदिगार, मैंने अपनी तौहीन समझी, मैंने आदम को सिजदा नहीं किया। रब ने जब इतना सुना, रब ने अपनी बारगाह से उसे भगा दिया और क़यामत तक उसके गले में लानत का तौर डाल दिया। एक जमाना और आगे बढ़ता है, जमाना बदलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस धरती पर आते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को समझाया था, ए लोगों अल्लाह एक है, ए लोगों अल्लाह की इबादत करो, ए लोगों अल्लाह की परस्तिश करो, इसके अलावा तुम किसी की इबादत ना करो, इसके अलावा तुम किसी की पूजा ना करो, इसके अलावा तुम किसी को माबूद ना समझो। इतना कहना था, लोगों ने आपकी बात को दरकिनार कर दिया, लोगों ने आपकी बात को नहीं माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम पर पानी का अज़ाब नाज़िल फरमाकर गर्क कर दिया जाता है, उस कौम को गर्क कर दिया गया है। और जमाना आगे बढ़ता है और जमाना आगे तब्दील होता है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद अब हजरत इब्राहीम का जमाना आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत इब्राहीम ने देखा नमरूद अपने आप को खुदा कहला रहा था, लोगों की पेशानियां अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर रहा था, लोगों से कह रहा था, ए लोगों मैं अल्लाह हूँ, ए लोगों मैं खुदा हूँ, ए लोगों मैं तुम्हारा माबूद हूँ, ए लोगों मैंने तुम्हारे लिए तमाम चीजें मुहैया की हैं। ए लोगों अपनी पेशानियां मेरे सामने झुकाओ, अपने दिलों को मेरे सामने झुकाओ, अपने सरों को मेरे सामने झुकाओ। इतना कहना था। हजरत इब्राहीम पहुंचते हैं, दरबारे नमरूद में पहुंचे और दरबारे नमरूद में पहुंचने के बाद नमरूद को समझाते हैं, लेकिन नमरूद नहीं मानता है। अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक कर दिया और जमाना आगे बढ़ता है, जमाना अंगड़ाइयां लेता है, सबो रोज बढ़ते हैं, सबो रोज तब्दील होते हैं। उधर फिरौन नमरूद के नक्शे कदम पर चला था। अल्लाह ने उसे समझाने के लिए हजरत मूसा को भेजा। हजरत मूसा तशरीफ लेकर के आते हैं। हजरत मूसा ने समझाया था, ए फिरौन, अपने आप को खुदा कहलाना बंद कर दे। ए फिरौन, तू लोगों की पेशानियां अपने सामने ना झुकाना। ए लोगे फिरौन, तू हरगिज़ खुदा नहीं, बल्कि खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया है, खुदा वो है जिसने आसमानों को पैदा किया है, खुदा वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। ए फिरौन, खुदा कहलाने से बाज रहे, ए फिरौन माबूद कहलाने से बाज रहे, लेकिन फिरौन नहीं मानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन और उसके हवारियों को दरियाए नील में गर्क कर दिया है और जमाना आगे बढ़ता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं, लेकिन कौम नहीं मानती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमानों पर उठा लिया जाता है, 550 बरस का जमाना गुजरा, इस पीरियड में कोई नबी नहीं आया, इस पीरियड
पीरियड में कोई रसूल नहीं आया, इस पीरियड में कोई पैगंबर नहीं आया। अब लोग माबूदाने बातिला के सामने अपनी पेशानियों को झुकाने लगे, लोग माबूदाने बातिला के सामने अपने सरों को झुकाने लगे। कोई पत्थर के सामने सर को झुकाता, कोई ईंट के सामने पत्थर को झुकाता, कोई गाय के सामने पत्थर को झुकाता, कोई किसी के सामने पत्थर को झुकाता। हालात यहाँ तक बनते हैं, अगर कमजोर होता है तो कमजोर पर जुल्म सितम किया जाता है, यतीमों पर जुल्म सितम किया जाता है। बेवाओं का कोई वकार नहीं रहा था, उधर बच्चियों को जिंदा दरदोर किया जा रहा था। अल्लाह पर गरीब चिल्ला रहे थे, बच्चियां चिल्ला रही थी, लोग आहो सुना कर रहे थे, इंसानियत बिलक रही थी, रब की बारगाह में रो रो कर अर्ज कर रही थी, ऐ मेरे मौला, अरे कब तक जुल्म का बाजार गर्म रहेगा? ऐ परवरदिगार, आखिरी पैगंबर को भेज दे। मेरे मौला ने दुनिया की तारीकी को खत्म करने के लिए मक्के की धरती पर आमना के लाल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर आते ही मुसलमान आकाई कौनैन आए, 40 साल जिंदगी मेरे पैगंबर ने खामोशी से गुजारी। आकाई कौनैन 40 साल के बाद फारान की चोटी पर चढ़ते, मेरे पैगंबर ने फरमाया, लोगों तुम मुझे कैसा जानते हो? तो लोग कहते हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम आपको सादिक इब्न सादिक जानते हैं, हम आपको अमीन इब्न अमीन जानते हैं। मेरे पैगंबर ने जब इतना फरमाया तो कहा, लोगों क्या मैंने कभी कोई झूठ बोला? तो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, आपने कोई झूठ नहीं बोला। आपने फरमाया, कभी मैंने किसी को धोखा दिया? लोगों ने कहा था, नहीं, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नबी कौनैन फरमाती हैं, लोगों अगर मैं आज तुमसे एक बात कहूं तो सच मानोगे? लोगों अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो सच मानोगे? तो लोग कहते हैं, हाँ हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। जब पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है तो आज कैसे झूठ बोलोगे? मेरे पैगंबर ने फरमाया, सुनो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपना आखिरी पैगंबर बनाया है। मुस्तफा रब परवरदिगार ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। इतना कहना था, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो मेरा कलमा पढ़ लो और मुझे अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम कर लो। अल्लाह अकबर। यही लोग जो आपके पहली कसीदे पढ़ रहे थे, यही लोग जो आपकी पहली तारीफें कर रहे थे, यही लोग जो आपको बहुत अच्छा जान रहे थे, अब यही लोग आपको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, यही लोग आपकी बुराइयां बयान करना शुरू कर देते हैं, यही लोग आपको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक 8 साल का बच्चा था जिसको अली मुर्तजा जमाना जानता है, अली मुर्तजा बोलते हैं, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपको लोग अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। जवान उठा था, सिद्दीक़ अकबर बोले थे, ए मुस्तफा लोग नहीं मानते हैं लेकिन आपकी रिसालत की तस्दीक मैं करता हूँ। एक औरत बोली थी और कहा था, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर जमाना आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता है, अगर जमाना आपको अल्लाह का पैगंबर नहीं मानता है तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मानती हूँ। तारीख ने उसको खदीजतुल कुबरा के नाम से याद किया है। एक खातिब बोला था, एक गुलाम बोला था, बिलाल आगे बढ़कर बोला था, एक मुस्तफा जाने रहमत, अगर दुनिया आपको रसूल नहीं मानती है, दुनिया आपको पैगंबर नहीं मानती है, दुनिया आपको रसूल नहीं मानती है, तो मुस्तफा मैं आपको अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने जैसे ही इनकी जबान से अपना कलमा तैयब सुना तो मेरे पैगंबर फरमाने लगे, मेरे गुलामों, आज तुमने मेरा कलमा पढ़ा
आजल रहमत आका दीन की तबलीग करते रहे। तबलीग करते करते लोग आहत के दुश्मन हो जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे पैगंबर ने मक्का छोड़ा मदीना पहुँचे और मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे पैगंबर ने इकामत फरमाई। सरकार ठहरे, सरकार का ज़ाहिरी ज़माना भी गुजर जाता है। मेरे आका के बाद हज़रत उमर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बनाए गए। सिद्दीक़ अकबर का ज़माना गुजरा, फारूक आज़म आए। हज़रत फारूक आज़म का ज़माना गुजरा, हज़रत उस्मान गनी आए। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना गुजरा, हज़रत मौला अली आए। और हज़रत मौला अली का ज़माना गुजरा तो हज़रत हसन मुश्तबा आए। और हसन मुश्तबा का ज़माना गुजरा तो हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनका बेटा, जिसको यजीद पलीद के नाम से दुनिया जानती है, यजीद पलीद ने फौरन उस तख्त पर कब्जा किया और इनाम सल्तनत को संभालने के बाद लोगों से कहा था, आज तक तो खिलाफत का दौर चला था, लेकिन आज के बाद खिलाफत नहीं, बादशाहत चली। बादशाहत का जमाना है। उसने खत लिखा और गवर्नर मदीना से कहा था, सुनो, मुझे 4 लोगों से ज्यादा खतरा है। अगर 4 लोगों में से किसी ने भी मेरी बैअत से इनकार कर दिया तो याद रखो, ये ज़माना मुझे अपना अमीर तस्लीम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। गवर्नर मदीना की जानिब ख़त लिखा जाता है। मेरे प्यारे आका हुसैन की बारगाह में गवर्नर मदीना का कासिद चलता है। मेरे आका हुसैन तशरीफ़ लेकर के आते हैं, गवर्नर मदीना के दारुल इबादत में पहुँचते हैं। मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, एक गवर्नर मदीना क्यों याद किया है? गवर्नर मदीना ने कहा था, ये मेरे आका, मैं कुछ कहने की जसारत तो नहीं रखता हूँ, सरकार अपनी जबान से कुछ कहना नहीं चाहता। सरकार, ये खत है, इस खत को तुम आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद फैसला कर लो आपको क्या करना है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में गवर्नर मदीना ने खत पेश कर दिया है। मेरा हुसैन खत लेता है। खत लेने के बाद इमाम हुसैन ने खत को पढ़ा था। हाशमी तेवर जलाल में आ जाता है, अली का शेर जलाल में आ गया, नबी का शहजादा जलाल में आ जाता है, नबी ये कौनैन का शहजादा जलाल में आया। आने के बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक गवर्नर मदीना, यजीद की जानिब खत लिख दो कि हुसैन अपने बच्चों को कुर्बान कर देगा, हुसैन अब्बास के बाजुओं को कटा देगा, हुसैन कासिम की जवानी को लुटा देगा, हुसैन औला मोहम्मद के बचपने को कुर्बान कर देगा, हुसैन अली असगर के बचपने को कुर्बान कर देगा, लेकिन हुसैन कभी भी यजीद की बैत नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। कहने के बाद अब यजीद की जानिब खत लिखा जाता है। यजीद ने कहा था, यजीद ने कहा था, अगर हुसैन बैत करने पर मजबूर ना, अगर हुसैन बैत ना करे तो उन्हें ऐलान जंग के लिए पैगाम दे देना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रुफ़क़ा को इकट्ठा करते हैं, अपने खानदान के लोगों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद इमाम फरमाते हैं, ए लोगों, यजीद की जानिब से पैगाम आया है। यजीद ने कहा है कि हुसैन हमारी बैत कर लो, अगर बैत नहीं करोगे तो सर देने के लिए तैयार हो जाओ। ए लोगों, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इमाम हुसैन के रुफ़क़ा जवाब देते हैं, ए हमारे आका हुसैन, आपने यजीद को कैसे पाया है? आपने यजीद को कैसा पाया है? हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे रुफ़क़ा, यजीद को मैंने शराब पीते हुए देखा है, यजीद को मैंने जुआ खेलते हुए देखा है, यजीद को मैंने ज़िना करते हुए देखा है, यजीद ने हराम को हलाल कर दिया है, हलाल को हराम कर दिया है। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे हुसैन की बारगाह में आपके रुफ़क़ा अर्ज़ करते हैं, सरकार आप ही फैसला करें। तो क्या आप ही फैसला करें? हजरत हुसैन को जलाल आ गया। हुसैन ने कहा था, लोगों, मैंने ये फैसला किया है, हुसैन का हाथ पाक है और यजीद का हाथ नापाक है। हुसैन का हाथ पाक
नापाक है, यजीद का हाथ नापाक है। एक पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। अगर पाक हाथ नापाक हाथ में चला गया तो मतलब यह होगा कि हुसैन शरीयत का सौदा कर रहा है। ए मेरे गुलामों, अरे हुसैन शरीयत की खातिर अपने खानदान को तो कुर्बान कर देगा, लेकिन शरीयत पर आ जाए हुसैन इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इतना कहना था। फिर कहने लगे हुसैन क्या इरादा है? लोग बोले सरकार आप जैसा चाहिए। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं चलो हमने ये इरादा किया है कि हम मदीना छोड़ेंगे और मक्का जाएंगे और मदीना छोड़कर हम इस्लाम को बचाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तैयारी करो। आपके खानदान के लोग तैयारी करने लगे। हजरत इमाम हुसैन रात के वक्त में जब मदीना छोड़ने वाले थे, अपने नाना हजरत नबी पाक के मज़ार पाक पर हाजिर हो गए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं नाना वक्त आ गया है मदीना छोड़ने का। नाना एक वक्त वो था कि आपने इस्लाम की हिफाजत के लिए इस्लाम को तरक्की देने के लिए आपने मदीना मक्का छोड़ा था, मदीना आबाद किया था। ये मेरे नाना आज ये हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए मदीना छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन जब इतना कहते हैं, मेरे आका हुसैन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के मज़ार पाक से लिपट कर रोते हैं, रोते रोते आँख लग जाती है। मेरे प्यारे आका आलम ख्वाब में हुसैन की तशरीफ़ लेकर के आते हैं। हज़रत हुसैन का सरे मुबारक मेरे आका ने अपनी रान पर रखा। रखने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, जा मैदान करबला में जाना। अल्लाह तुम्हारे दीन, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ए मेरे लाल मैदान करबला में तुम्हारे बेटों को शहीद किया जाएगा, लेकिन तुम फिसल ना जाना। तुम्हारे भतीजों को शहीद किया जाएगा, लेकिन तुम फिसल ना जाना। ए मेरे लाल मैदान करबला में तुम्हारे खानदान को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे रुफका को शहीद किया जाएगा, तुम्हारे घर के लोगों को काटा जाएगा, लेकिन मेरे लाल तुम सब्र करना। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन है, मैदान इमाम हुसैन है, अपने नाना की बात को सुनकर बेदार होते हैं, तड़पते हैं, अपने नाना के मज़ार पाक में आखिरी सलाम कहते हैं। अलविदाई सलाम किया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा अब अपनी माँ की कब्र अनवर पर जाता है। आमना का लाश मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा हजरत हुसैन माँ की कब्र अनवर पर पहुंचे। हजरत हुसैन हजरत फातिमा की कब्र अनवर पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आखिरी सलाम करते हैं, अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान आपका बेटा जुदा हो रहा है। ए अम्मी जान दुआ करना ताकि आपका बेटा अपनी गर्दन कटाए तो कोई भी जुम्बिश का लफ्ज की ज़बान पर ना आए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अपनी माँ की कब्र पर सलाम करके रुखसत होते हैं, अपने भाई की कब्र पर पहुंचते हैं, अपने भाई से इजाजत लेते हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला, मैदान हुसैन मक्के से मदीना से चले, मक्का की धरती पर पहुंचते हैं। मक्का की धरती पर पहुंचे, उधर कूफियों के खुतूत आने लगते हैं। कूफियों ने कहा था, ए हुसैन अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो हमें मजबूरन यजीद की बैत करना होगी। अगर यजीद की हमने बैत कर ली, मैदान क़यामत कायम होगा। मैदान क़यामत में हम तुम्हारा दामन पकड़ेंगे, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे। ए परवरदिगार, हमने हुसैन को बुलाया लेकिन हुसैन नहीं आए। हमने हुसैन को दावत दी लेकिन हुसैन नहीं आए। हमने हुसैन को बुलाया, हुसैन नहीं आए। ए मौला, हमने हुसैन को दावत दी थी। ए परवरदिगार, कितने परवरदिगार
हुसैन नहीं आए, परवरदिगार हमने मजबूरन यजीद की बैत कर ली है, हमने मजबूरन यजीद की बैत की है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन चले 8 जिलहिज्जा यानी 2 जिलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्कातुल मुकर्रमा से चलते हैं, उधर मैदान करबला का रुख करते हैं, मैदान करबला में पहुंचते हैं। इमाम हुसैन तो मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में पहुंचे, और जैसे ही मैदान करबला में इमाम हुसैन दो मुहर्रमुल हराम को पहुंचे, उधर यजीदी लश्कर भी पहुंच जाता है। यजीदी लश्कर में से अमर इब्न साद आगे बढ़ता है और कहता है हुसैन अब दीदार आ जाओ, या तो तुम यजीद की बैत कर लो या अपना सर देने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं जा सकता, एक जुआरी के हाथ में हाथ नहीं जा सकता, एक कबाबी के हाथ में हाथ नहीं जा सकता, एक जानी के हाथ में हाथ नहीं जा सकता, एक अंजार के हाथ में हाथ नहीं जा सकता, एक मक्कार के हाथ में हाथ नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ने वो दूसरे मुहर्रम का दिन गुजारा है, तीसरे मुहर्रम के लिए फिर यजीद का कासिद पहुंचा है। इमाम हुसैन ने जवाब दे दिया। तीसरे मुहर्रम के बाद 4 मुहर्रम का दिन गुजरता है, 5 मुहर्रम का दिन गुजरता है, 6 मुहर्रम का दिन गुजरता है, 7 मुहर्रम का दिन आता है। हज़रत इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन 7 मुहर्रम का दिन गुजारते हैं, 8वीं मुहर्रम का दिन गुजारते हैं। 9वीं मुहर्रम का दिन जब आता है, 9वीं मुहर्रम का सूरज निकलता है, और सूरज निकलने के बाद उधर से अमर इब्न साद का हुक्म होता है, ए हुसैन या तो तुम बैत कर लो, या तुम बैत कर लो, या अपना सर देने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं ये अमर इब्न साद सुन ले, अगर तुझे जंग ही करना है तो आज रात की मोहलत दे दे। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ने रात की मोहलत मांगी है। इमाम हुसैन अपने रुफाका को जमा करते हैं, कलमों से रुफाका को इकट्ठा करते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया था लोगों चराग चल रहा है, लोगों ये यजीदी तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, इन यजीदियों को मेरा खून चाहिए, इन यजीदियों को मेरा खून चाहिए या मेरा सर चाहिए। लोगों तुम अपने बच्चों को यतीम ना करो, लोगों तुम अपनी बीवियों को बेवा ना करो, लोगों तुम अपने माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ो। लोगों अरे तुम चले जाओ और जाने के बाद तुम अपने घरों को आबाद कर लो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने इतना कहा था, लेकिन लोगों ने अपने सर को झुका दिया था। इमाम हुसैन ने कहा था लोगों तुम उजाले की वजह से जाना नहीं चाहते, लोगों तुम रोशनी की वजह से जाना नहीं चाहते। लोगों हज़रत इमाम हुसैन ने चराग को बुझा दिया है, और चराग को बुझाने के बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं जो जाना चाहता है वो चला जाए। अल्लाह अकबर। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो जाता है, सख्ता पड़ जाता है, पूरी महफिल खामोश होती है। एक बात पूरी महफिल खामोश ही। हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर आगे बढ़े, चराग को जलाया, और जलाने के बाद इमाम की बारगाह में अर्ज करते हैं ए इमाम आपने ये जुमला कहा है, ए इमाम हमारी माओ ने हमें इसलिए नहीं पाला था, हुसैन पर कोई मजबूरी आए तो हम अपनी जानों को बचा कर चले जाए, हुसैन पर कोई परेशानी आए हम हुसैन को अकेला छोड़ दे, हुसैन पर कोई मुश्किल आए हम हुसैन को अकेला छोड़ दे। हबीब इब्न मुज़ाहिर बोले मेरे आका सुनो, अरे हबीब की जिंदगी भी आपके नाम पर कुर्बान है, और हम तमाम गुलामों की जिंदगी भी आपके नाम पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर की बात पर मेरे हुसैन ने लब्बैक कहा नहीं जाना चाहते हो? कहा नहीं। फरमाया तो जाओ अपने खेमों में चले जाओ, तिलावत कुरान करो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सब अपने अपने कब्रों में चले गए, अपने अपने खेमों में चले गए, तिलावत कुरान करने लगे। अब जब सुबह का सूरज नमूदार होता है, 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज नमूदार, अम्र इब्न साद ने तीर कमान पर चढ़ाया और बुलंद आवाज में कहा था हुसैन सर दोगे या हाथ दोगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं अम्र इब्न साद हाथ देने का तो सवाल ही नहीं, हुसैन सर दे देगा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, उस मरदूद व मलऊन ने तीर को चिल्ले पर चढ़ाया
اور چلے پر چڑھانے کے بعد امام حسین کے خیمے کی جانب چھوڑا اور بلند آواز سے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جانا اور یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ سب سے پہلے جو حسین کے خیمے کی جانب تیر چھوڑا تھا وہ کسی اور نے نہیں عمرو بن سعد نے تیر چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب قبلہ جنگ بچتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر دیکھتے ہیں کہ حسین امامہ شریف باندھے ہیں، آپ نے جبہ مبارکہ پہنا ہے اور مصطفیٰ کا رومال اپنے کاندھے پہ لٹکایا ہے۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، دیکھا کہ آقا حسین تلوار کی ٹیک لگائے ہوئے زمین پر بیٹھے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کرتے ہیں آقا حسین کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ تو حسین فرماتی ہیں اب حسین کا کربلا میں جانے کا وقت آ گیا، حسین کربلا جا رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر عرض کرتے ہیں سرکار غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں جائے، آپ ہم سے پہلے میدان میں چلے جائیں گے تو بتاؤ اگر آپ کے نانا نے میدان قیامت میں پوچھ لیا تو آپ کے یہ غلام کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا میرے حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا حسین آپ کا غلام میدان میں پہلے جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر گئے اور 72 سال کی عمر میں انہوں نے لاٹھی ایک طرف پھینکی، تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے۔ 72 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی منزل ہے، بڑھاپے کی منزل میں یزیدیوں میں سے ایک بڑھا، میرے آقا حسین کے خاتم حبیب ابن مظاہر نے ایک ہی وار پر اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 19 یزیدیوں کو حضرت حبیب ابن مظاہر نے جہنم پہنچا دیا۔ آخر کار ان لوگوں نے ایک بار کی حملہ کیا، حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا۔ عمرو ابن سعد بولا حسین اپنے سب سے بڑے وفادار کا سر لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین حبیب ابن مظاہر کو لے کر کے آتے ہیں اور خیمے کی جانب دوڑتے ہیں۔ خیمے میں حبیب ابن مظاہر کی لاش رکھی تو دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب اب کا دوسرا جانباز سپاہی جن کو مسلم ابن اوشجہ کہتے ہیں تیار کھڑے۔ مسلم ابن اوشجہ بولے حضور اجازت دو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اجازت ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت امام حسین نے اجازت دی، اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ماں آقا حسین نے تو اجازت دے دی ہے، کیا آپ کی بھی جانب سے اجازت ہے کہ نہیں؟ علامہ عادل صاحب آپ کی بھی جانب سے اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسین نے جب حضرت مسلم ابن اوشجہ نے جب اتنا کہا تو آپ کی ماں کہتی ہے بیٹے جب تو اس دنیا میں آیا تھا اور جب تجھے میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا تو میں نے یہ دعا کی تھی اے میرے مولا میرے بیٹے کو سچا غلام حسین بنا دے، سچا غلام حسین بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے آج کے دن تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر دے گا تو یہ تیرے ماں کے لیے معراج ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم حضرت مسلم ابن اوشجہ نے جیسے ہی اپنی ماں سے اجازت مانگی، ماں سے کہتے ہیں ماں اے میری ماں میں اپنی بیوی کے پاس تو چلا جاؤں تاکہ میں اس سے اجازت لے لوں۔ حضرت امام مسلم ابن اوشجہ چلے ہیں، اپنی بیوی کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اے میری شریک حیات ہمیں معلوم ہے ہماری شادی کو 1 یا 2 سال ہوئے ہیں، ہماری شادی کو چند سال ہوئے ہیں، تم نے میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑا ہے، تم نے میری خاطر اپنی بہن کو چھوڑا ہے، تم نے میری خاطر اپنے باپ کو چھوڑا ہے، تم نے میری خاطر اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑا ہے، تم نے میری خاطر اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑا ہے۔ اے میری شریک حیات میں نے حسین پر
जान कुर्बान करने का इरादा कर लिया है। मेरे आका हुसैन ने मुझे इजाजत दे दी है। मेरी माँ ने जो मुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, उसने 2 साल तक अपने शिकम से दूध, अपने छाती का दूध पिलाया। मेरी माँ, मेरी बीवी सुनो, मेरी माँ ने मुझे इजाजत दे दी है। क्या तुम्हारी जानिब से इजाजत है ताकि मैं मैदान करबला में जाऊं, हुसैन पर कुर्बान हो जाऊं? आपकी बीवी ने इतना सुना, आपकी बीवी कहती है हाँ हाँ इजाजत तो है, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त की बुनियाद पर मैं आपको इजाजत दूंगी। आपकी बीवी ने अर्ज किया था सरकार, वो कौन सी शर्त है, वो कौन सी शर्त है? तो आपकी बीवी कहती है चलो पहले हुसैन की बारगाह में चले। हुसैन की बारगाह में जाने के बाद हम आपकी बात, आपके लिए शर्तें पेश करेंगे। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में चले हैं। चलने के बाद हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मुस्लिम इब्ने औशजा अपनी बीवी और अपनी माँ को लेकर के चले, और दोनों ही चले हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मुस्लिम इब्ने औशजा क्या बात है, ए मेरे प्यारे मेरे भाई क्या बात है, तुम अपनी माँ को साथ लेकर क्यों आए हो, तुम अपनी बीवी को साथ लेकर क्यों आए हो? हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा अर्ज करते हैं सरकार आपने इजाजत दे दी, मेरी माँ ने इजाजत दे दी, लेकिन मेरी बीवी इजाजत देने के लिए शर्तें रखती है। मैं अपनी बीवी की इजाजत की शर्त सुनने के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ। मेरी बीवी कहती है मेरे आका, मैं हुसैन की बारगाह में अपनी शर्तें रखूंगी ताकि कयामत में हुसैन हमारी गवाही दे दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मुस्लिम इब्ने औशजा की बीवी, ए खातून बोलो वो कौन सी शर्त है जिस शर्त को तुम रखना चाहती हो? हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मुस्लिम इब्ने औशजा की बीवी अर्ज करती है ए मेरे सरताज, मैं इनसे ये वादा लेना चाहती हूँ, ये करबला में पहुंचेंगे, जालिमों के जुल्म का शिकार हो जाएंगे, इनकी गर्दन काट दी जाएगी, इनके जिस्म से खून बहा जाएगा, इनके जिस्म से रूह निकाल ली जाएगी, ये जन्नत में जाएंगे। तो मैं इनसे ये वादा लेना चाहती हूँ ए मेरे आका, ए मेरे प्यारे हुसैन, जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, इनके साथ हम भी जाएंगे, इनके साथ हम भी दाखिल होंगे। हजरत इमाम हुसैन ने जब इतना सुना, इमाम हुसैन मुस्कुरा दिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ए खातून जाओ जाओ, इसकी जमानत मुस्तफा का नवासा लेता है, आमना के लाल का नवासा लेता है, हुसैन इसकी जमानत लेता है। जब मुस्लिम इब्ने औशजा जन्नत में जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर के जाएगा, तुम्हारी माँ को भी अपने साथ लेकर के जाएगा, तुम्हारी औलाद को भी अपने साथ लेकर के जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने जमानत दी है। इमाम मुस्लिम हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा चले हैं, मैदान करबला में पहुंचे, यजीदियों से मुखातब होते हैं, यजीदियों से कहते हैं है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरा मुकाबला करे, है कोई जो मेरा मुकाबला करे, है कोई जो मुझे मेरे मुकाबले में आ जाए। एक जालिम आगे बढ़ा था, हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा के ऊपर वार किया। अल्लाह के प्यारे नबी के बेटे, अल्लाह के प्यारे नबी के गुलाम ने वार को खाली कर दिया, दूसरा वार किया है उसे भी खाली कर दिया है, तीसरा वार किया है उसे भी खाली कर दिया है। अब अल्लाह का शेर कर देता था, अल्लाह का शेर का रास्ता है। अल्लाह के बंदे ने तलवार उठाई थी और उठाने के बाद कहा था तूने वार कर लिया है लेकिन तू नाकाम हो गया है, अब तू हुसैन के गुलाम के वार को बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर, उसने वार किया था और वार करने के बाद उसने अपनी तलवार चलाई थी, एक ही वार में उसको जहन्नम पहुंचा दिया, दूसरा बढ़ता है उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया, तीसरा बढ़ता है उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। 42 लोगों को हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा ने जहन्नम पहुंचा दिया है। अब लोगों ने घेर लिया है, हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा पर तीरों की बारिश की जाती है, पर्चियां बरसाई जाती है, इमाम मुस्लिम इब्ने औशजा पर तीरों
बार्चियों की बारिशें होती हैं। इमाम हजरत मुस्लिम इब्न औशजा घोड़े से नीचे आते हैं। आने के बाद एक सालिम आगे बढ़ता है, हजरत मुस्लिम इब्न औशजा की गर्दन को जिस्म से जुदा करता है और खेमे हुसैन की जानिब बुलंद करके फेंकता है और कहता है, हुसैन अपने इस वफादार का सर अपनी गोद में रख लो। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्न औशजा ने, हजरत मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी ने कैसे ही इतना देखा, मेरे शौहर के सर को, मेरे शौहर के सर को जिस्म से जुदा करके हवा में उछाल करके हमारे खेमे की जानिब फेंक दिया है। हजरत मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी है, उनकी बीवी ने हजरत मुस्लिम औशजा के सर को संभाला। संभालने के बाद हजरत मुस्लिम इब्न औशजा की पेशानी को साफ किया है, आपके चेहरे को साफ किया है, अपने सर को अपने शौहर के चेहरे पर रखा है। रखने के बाद अपने शौहर के सर से कहती है, मेरे आका हमारे वादे को भूल न जाना, हुसैन आ गए। तो हुसैन ने फरमाया, ए खातून, अल्लाह ने तेरे शौहर से किए हुए वादे को पूरा कर दिया है और अल्लाह ने तेरे शौहर के साथ तुम्हें भी जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह। मुसलमानों, मुस्लिम इब्न औशजा की भी शहादत हो जाए। मुस्लिम इब्न औशजा की बात, 72 जानिसाराने मुस्तफा शहीद हो गए। अब बारी आती है हजरत अब्बास अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार ने खैमे हुसैन की जानिब झांक कर देखा तो खैमे हुसैन में कई ज़ैनब प्यास से तड़पती नजर आती है। कभी अली अकबर के सूखे हुए होंठ को देखते हैं, तड़प जाते हैं। कभी औनो मोहम्मद की ज़बान के चटकारे को सुनते हैं, तड़प गए। कभी सकीना की प्याज को देकर रो दिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो भाई हजरत अब्बास अलमदार को रहा न गया, उन्होंने मशकीज़ा उठाया, अपने कंधे पर डाला, तलवार ली, अलग हाथ में है, घोड़े पर सवार हुए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई घोड़े को एड़ लगाने ही वाले थे कि हुसैन तशरीफ लाए। लगाम पकड़ी, फरमाया, मेरे भाई कहाँ जाने का इरादा? मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? हजरत अब्बास अलमदार अर्ज करते हैं, मेरे भाई मुझसे खेमे में रहने वाले बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती है। भाई मुझे सकीना की प्यास तड़पाती है। भाई मुझे औलो मोहम्मद की प्यास में बेकरार कर दिया है। भाई मुझे अब्बास, भाई मुझे कासिम की प्यास में बेकरार कर दिया है। भाई अब्बास के होते हुए खैमे हुसैन में लोग प्यासे रहे, ये नहीं हो सकता। खैमे हुसैन में लोग प्यास से तड़पे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन का भाई है हजरत अब्बास अलमदार, घोड़े को एड़ लगाते हैं, लश्कर अश्किया को चीरते हुए नहर फुरात में पहुंच जाते हैं। नहर फुरात में घोड़े को दाखिल कर देते हैं। घोड़े को दाखिल किया, हजरत अब्बास अलमदार ने अपने मशकीज़े से पानी, मशकीज़े को पानी से भर लिया और मशकीज़े को पानी से भरने के बाद हजरत अब्बास अलमदार ने अपने चुल्लू में पानी लिया। पानी लेने के बाद आपने अपने जैसे ही होठों के करीब किया था, फौरन सकीना की याद आ जाती है, फौरन औलो मोहम्मद की याद आ जाती है, फौरन अब्बास को हजरत कासिम की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास तड़पा जाती है। इमाम हुसैन का भाई बोलता है, पानी फेंकता है। फेंकने के बाद इमाम हुसैन के भाई ने कहा था, अब्बास बोले थे, ए अब्बास नबी के शहजादे प्यासे रहे, नबी के जानकार प्यासे रहे, नबी की बेटियां प्यासी रहे, नबी की शहजादियां प्यासी रहे, नबी की औलाद प्यासी रहे। ए अब्बास तू शिकम सैर हो जाए, तू पानी से अपनी प्यास को बुझा ले। ए अब्बास ये नहीं हो सकता। ए अब्बास तुझ पर उस वक्त तक पानी पीना हराम है जब तक नबी के शहजादों को पानी नहीं पिला देगा, नबी की शहजादियों को पानी नहीं पिला देगा। हुसैन में जब तक तू पानी नहीं पहुंचा देगा, ए अब्बास उस वक्त तक तू
पानी नहीं पिएगा। अब्बास ने फौरन वो पानी पी नहर में छोड़ दिया है। अपने घोड़े से फरमाते हैं, ए मेरे शेर तू पानी पी ले, ए मेरे शेर तू पानी पी ले, ए मेरे शेर अपनी प्यास को बुझा ले, ए मेरे शेर तू अपनी प्यास को बुझा ले। अल्लाह अकबर। घोड़े ने जब इतना सुना था, घोड़े ने अपना मुंह आसमान की जानिब बुलंद किया और बुलंद करने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह ने घोड़े को कुव्वत गोयाई अता फरमाई थी। अल्लाह ने घोड़े को बोलने की ताकत अता फरमाई थी। उस घोड़े ने अब्बास की बारगाह में अरीजा पेश किया था, ए अब्बास मेरा आका प्यासा रहे मैं पानी पीऊं, शहजादी सकीना प्यासी रहे मैं पानी पीऊं, मौला मोहम्मद प्यासे रहे मैं पानी पीऊं, अली अकबर प्यासे रहे मैं पानी पीऊं, कासिम प्यासे रहे मैं पानी पीऊं, अरे 6 महीने का बच्चा अली असगर प्यासा रहे मैं पानी पीऊं। ए अब्बास अगर मैं पानी पीऊंगा दुनिया कहेगी अब्बास का घोड़ा वफादार नहीं था, अब्बास का घोड़ा भी यजीदी हो गया था, अब्बास के घोड़े ने भी खानदान हुसैन को प्यासा देखना पसंद किया था। ए अब्बास में हरगिज पानी नहीं पी सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई थी। एड़ लगाने के बाद हजरत अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात से निकला है। नहरे फुरात से जैसे ही निकला हजरत अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात से निकला, इमाम हुसैन के खेमे की जानिब दौड़ने लगता है। हजरत अब्बास फिर मैं हुसैन की जानिब दौड़ने लगते हैं। एक नारा बुलंद होता है, एक आवाज आती है, एक आवाज गूंजती है, लोगों रोको रोको। फिर मैं हुसैन की जानिब पानी न पहुंचने पाए, फिर मैं हुसैन तक पानी न पहुंचने पाए। अगर फिर मैं हुसैन तक पानी पहुंच गया, याद रखना कोई भी यजीदी पर, कोई भी यजीदी जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। हुसैन का एक बच्चा पानी मिलते ही हम सबको कत्ल कर देगा। ए लोगों अब्बास को रोको, ए लोगों अब्बास को रोको, ए लोगों अब्बास को रोको। अल्लाह अकबर। हर तरफ शोर पैदा हो जाता है, हर तरफ घोगा पैदा हो जाता है, हर तरफ शोर और शराब पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास को घेर लिया जाता है, हजरत अब्बास पर तीरों की बारिशें की जाती है। हजरत अब्बास का घोड़ा जमीन पर आता है, हजरत अब्बास जमीन पर आते हैं, हजरत अब्बास दौड़ने लगते हैं। एक जालिम ने तीर चलाया था, हजरत अब्बास के मस्तीजे में छेद किया था। हजरत अब्बास के मस्तीजे को पार करता हुआ हजरत अब्बास के बाजू में बेबस हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जालिम आगे बढ़ता है। एक जालिम ने तलवार को उठाया था, हजरत अब्बास के बाजू को शहीद कर दिया था। मेरे अब्बास ने उस मस्तीजे को दहनी साइड से निकाला, निकालने के बाद बाईं साइड पर लटका दिया, लेकिन खेमे हुसैन की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया है। खेमे हुसैन की जानिब दौड़ना बंद नहीं करते हैं। हजरत अब्बास चलते हैं, दूसरा जालिम आगे बढ़ता है, हजरत अब्बास के बाएं बाजू को भी काट देता है। मेरा अब्बास दोनों बाजुओं से महरूम होता है, फौरन मस्तीजा गिरता है। इमाम हुसैन का भाई है। हजरत अब्बास जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर बैठने के बाद मस्तीजे को अपने दांतों में फांसते हैं, खेमे हुसैन की जानिब दौड़ते हैं, खेमे हुसैन की जानिब चलने लगते हैं। एक जालिम आगे बढ़ता है, हजरत अब्बास के बर्छी मारता है, हजरत अब्बास के नेजा मारता है। हजरत अब्बास जमीन पर आते हैं, आने के बाद अपने भाई हुसैन को आवाज देते हैं, ए हुसैन अपने भाई को आके संभाल लो, अपने भाई को आखिरी दीदार करा दो, अपने भाई को आखिरी दीदार करा दो। अल्लाह अकबर। हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अपने भाई हजरत अब्बास को संभाला है। हजरत अब्बास का सर अपनी गोद में रख कर फरमाते हैं, ए मेरे भाई घबराओ नहीं, ए मेरे भाई परेशान ना हो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ए मेरे भाई मैं बेटी सकीना से वादा जो किया था पूरा ना कर सका, मैंने औलाद मोहम्मद से जो वादा किया था मैंने पूरा ना कर सका, मैंने कासिम से जो वादा किया था उसे भी पूरा ना कर सका, मैंने अली अकबर से जो वादा किया था उसे भी पूरा ना कर सका। ए मेरे भाई अरे अपने बेटों से कह देना, अरे यहाँ की प्यास बर्दाश्त कर लो, अरे थोड़ी देर के बाद नाना जान तुम सबको कौशल का जाम अपने हाथों से पिलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुसलमानों, हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है। हजरत अब्बास की शहादत हो,
حضرت عباس کی شہادت، اس کے بعد علی اکبر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت اول محمد کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، خاندان مصطفیٰ کی کلیاں بجھ جاتی ہیں، سب کو شہید کر دیا جاتا ہے، آخر میں میرے آقا حسین بچے، آقا حسین بچے، تیاری کرنے لگے، بخار میں تپ رہے حضرت امام زین العابدین آئے، اور آنے کے بعد اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تلوار کا سہارا لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، اتنا تیز بخار تھا کہ اٹھتے ہیں، گر جاتے ہیں، میرے آقا حسین نے انہیں سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد فرمایا تھا میرے لال کیوں پریشان؟ کہا ابا جان آپ میدان کربلا میں چلے جائیں گے تو آپ کا یہ بیٹا آپ کے بعد کیسے زندہ رہے گا؟ اے ابا جان ابھی میرے جسم میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے، اجازت دے دو۔ امام حسین نے جیسے ہی اتنا سنا کہا نہیں میرے لال، مشیت الہی یہ کہتی ہے کہ زین العابدین تمہیں زندہ رہنا ہے، اور تم زندہ رہو گے تمہیں سے میرے نبی کی نسل کا اصل نسل چلے گی، تمہیں زندہ رہنا ہے، چلو گے نسل تم سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جب تیاری کرنے لگے، حضرت زینب اپنے بھائی کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کا دولہا بناتی ہے، اور کربلا کا دولہا بنانے کے بعد امام حسین کے گلے کو چومنے لگی، امام حسین کی پیشانی کو چومنے لگی۔ حسین نے فرمایا تو میری بہن بول گلے کو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ میری پیشانی کو تم کیوں چومتی ہو؟ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت زینب فرماتی ہیں بھائی جب میں اماں فاطمہ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی تو اماں فاطمہ نے یہ کہا تھا یہ میری بیٹی میدان کربلا میں حسین کے اسی گلے پر خنجر چلایا تھا، میں چوم رہی ہوں، بھائی کو پکڑا گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت زینب کی کلائیوں کو چوما، حضرت زینب نے عرض کیا تھا بھائی بولو تم نے میری کلائیوں کو کیوں چوما ہے؟ تو امام حسین نے اپنی بہن کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے میری بہن جہاں اماں فاطمہ نے میرے لیے یہ فرمایا تھا کہ میری گردن پر چھری چلے گی، وہیں پر یہ بھی فرمایا تھا کہ حسین میدان کربلا میں سر کو کٹائیں گے، اور میدان کربلا میں جب حسین سر کو کٹائیں گے تو زینب کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن میں نے اس وجہ سے تمہاری کلائی کو چوما ہے۔ امام حسین کو جب دولہا بنایا گیا، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی بہن حضرت زینب نے اپنے بھائی حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جب چلنے کا ارادہ کرتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے، روتی ہے، چیخ نکل گئی، چیخ۔ حسین نے فرمایا میری بہن بتاؤ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین کی بارگاہ میں حضرت زینب کہتی ہے میرے بھائی جب بابا زندہ تھے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو بھائی حسن گھوڑے کی لگام پکڑ کر باہر لے کر جاتے تھے، جب بھائی زندہ تھے تو آپ بھائی حسن کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ان کو چھوڑ کر آتے تھے، لیکن میرے بھائی آج نہ تو بابا زندہ ہے نہ بھائی حسن زندہ ہے، آج بابا کا کردار بابا کی بیٹی زینب نبھائے گی، آج بھائی کا کردار بھائی کی بہن زینب نبھائے گی۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، میں آپ کو خیمے تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ الغرض یہ حضرت امام حسین کا گھوڑا آگے بڑھا، خیمہ حسین کے جیسے ہی دروازے پر پہنچا،
घोड़ा अचानक रुक जाता है। जैसे ही घोड़ा अचानक रुका था, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे शेर क्या तू दुश्मन की फौज देख करके डर गया? ए मेरे फौज क्या, मेरे शेर क्या तू दुश्मन के खौफ से डर गया? हजरत इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन का घोड़ा जवाब देता है, ए आका हुसैन, मैं दुश्मन की फौज को देख कर नहीं डरा, दुश्मन की तादाद को देख कर नहीं डरा, दुश्मन के पास तीरों तीवर है इससे नहीं डरा, दुश्मन के पास नेज़े हैं मैं इससे नहीं डरा, दुश्मन के पास तलवारें हैं मैं इससे नहीं डरा। कहा फिर तू आगे बढ़ता क्यों नहीं? हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम हुसैन का घोड़ा आंखों में आंसू लाकर अर्ज करता है, हुसैन के घोड़े ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया था, उठाने के बाद हुसैन की बारगाह में अर्ज करता है, हुसैन आपका ये शेर बढ़े तो बढ़े कैसे? आपके इस शेर को आपकी बेटी ने बुज़दिल बना दिया है, आपके इस शेर को आपकी बेटी आगे बढ़ने नहीं देती है, आपके इस शेर के सामने, आपकी बेटी के सामने आपका ये शेर बिल्कुल बेबस नजर आता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपनी निगाह नीची करते हैं। नीची करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा हज़रत सकीना है, 8 साल की उम्र है, हज़रत सकीना है, 8 साल की उम्र है। हज़रत सकीना ने घोड़े के पैरों को पकड़ रखा है, हज़रत सकीना ने घोड़े के पैरों को पकड़ा, पकड़ने के बाद अब घोड़े को बढ़ने नहीं देती है। घोड़ा कहता है, ए हुसैन, अगर मैं आगे बढ़ूंगा आपकी बेटी सकीना को तकलीफ पहुंच जाएगी, अगर मैं आगे बढ़ूंगा आपकी बेटी सकीना जख्मी हो जाएंगी, अगर मैं आगे बढ़ूंगा आपकी बेटी सकीना को जख्म पहुंच जाएगा। दुनिया ये कहेगी कि हुसैन का घोड़ा हुसैन का वफादार ना हो सका, हुसैन के घोड़े ने हुसैन की बेटी को भी जख्मी कर दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का घोड़ा इतना अर्ज करता है, इमाम हुसैन ने अपनी निगाहें नीचे की हैं, अपनी बेटी को देखा है, देने के बाद हज़रत हुसैन नीचे आए हैं। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को संभाला है, संभालने के बाद अपनी बेटी को गोद में लिया है, गोद में लेने के बाद अपनी बेटी से फरमाते हैं, मेरे लाल क्या बात है, तुमने घोड़े की पैरों को क्यों पकड़ रखा है, तुमने मेरे शेर के पैरों को क्यों पकड़ रखा है? मेरे लाल बताओ तो सही, मेरे लाल क्या तुम्हारी जानिब से इजाजत नहीं है? तुम्हारी अम्मी ने मुझे इजाजत दे दी है, उम्मे रुबाब ने मुझे इजाजत दे दी है, उम्मे लैला ने मुझे इजाजत दे दी है, हजरत शहरबानो ने मुझे इजाजत दे दी है, तुम्हारी फूफी हजरत ज़ैनब ने मुझे करबला का दूल्हा बना दिया है, और करबला का दूल्हा बनाकर मुझे इजाजत देती है। मेरी बेटी बोलो तो सही, क्या तुम मुझे इजाजत नहीं दोगी? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत सकीना के जुमले सुनोगे तो आपका दिल आपका कलेजा मुंह को आएगा, आपका दिल फटने की कगार पर पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। एक बेटी है अपने बाप की बारगाह में अरीजा पेश करती है, मेरे अब्बा जान क्या तुम मुझे, मेरे अब्बा जान करबला के मैदान में ना जाओ, अब्बा जान करबला के मैदान में जाओगे तो आपको दुश्मन शहीद कर देंगे, आपके जिस्म से आपके सर को जुदा कर देंगे, आपको कत्ल कर देंगे, आपको शहीद कर देंगे। मेरे अब्बा, अगर तुम मैदान करबला में चले गए, अगर आपको शहीद कर दिया गया तो मेरे अब्बा बोलो तो सही, मैं अब्बा कहकर किसे पुकारूंगी, मैं पानी किससे मांगूंगी, मेरे अब्बा मैं खाना किससे मांगूंगी, मेरे अब्बा मैं अपने मुतालिबात को किससे पूरा कराऊंगी, मेरे अब्बा मैदान करबला में ना जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जब इतना सुनते हैं, इमाम हुसैन की चीख निकलती है, इमाम हुसैन अपनी बेटी की आंख से निकले हुए आंसुओं को पोंछते हैं, पोंछने के बाद हजरत ज़ैनब के हवाले करते हैं, हजरत ज़ैनब के हवाले कर दिया जाता है, अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं। मेरा हुसैन अब मैदान करबला में घोड़े का रुख कर देता है, लश्कर अश्किया के सामने पहुंचता है। मेरा हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यासे यजीदियों सुनो, तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अपने हाथों को तुम मेरे खून से रंगना क्यों चाहते हो? तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगना क्यों चाहते
जानते नहीं, अगर तुमने मेरे अपने हाथों को मेरे खून से न दिया तो याद रखना अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा, तुम तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी, तुम तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाएगा। अल्लाह पर इतना कहना था। इमाम हुसैन की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन ने इतना कहा। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं, लोगों बताओ तो सही, क्या मैंने किसी वक्त की नमाज को छोड़ा है? लोग बोलते हैं नहीं। हुसैन ने कहा था, क्या मैंने नमाज का इनकार किया है? लोगों ने कहा था नहीं। हुसैन ने कहा था, क्या मैंने ज़कात देने से इनकार किया है? लोगों ने कहा था नहीं। हुसैन ने कहा था, क्या मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया है? लोगों ने कहा था नहीं। आपने कहा था, क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? लोगों ने कहा था नहीं। आपने कहा था, क्या मैंने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया? लोगों ने कहा था नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब नमाज का इनकार मैंने नहीं किया, कत्ल मैंने नहीं किया, चोरी मैंने नहीं की है, झूठ मैं नहीं बोला हूँ, शरीयत के खिलाफ मैंने कोई कदम नहीं उठाया है, तो ये लोगों तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अपने हाथों को मेरे खून से रंगना क्यों चाहते हो? हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये लोगों ऐसा हरगिज़ ना करो, ऐसा हरगिज़ ना करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया, याद रखना अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा, तुम तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम्हारी नस्लें उजाड़ दी जाएंगी, तुम्हारे घरों में आग लगा दी जाएगी, तुम पर जालिम मुसल्लत